Hello everyone, welcome in RK Tutorials Simnaga YouTube channel. I am RK sir. Today we are going to discuss about causative of future perfect tense because previous class already we have finished that causative of future continuous tense. So that let's start rule of distinguish the sentence. That means which type of sentence is called causative of future perfect tense. So rule is saying that जिस वाक्य के अंत में वा चुका होगा, वा चुकी होगी, वा चुके होंगे रहे उसे पॉजिटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखवा चुका हूंगा, हम लोग तुम्हें गाना गवा चुके होंगे, राधा तुम्हें भात पकवा चुकी होगी, वे लोग तुम्हें पेड़ लगवा चुके होंगे। सो दैट वट एवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जाम्पल एंड ऑफ द सेंटेंस यू आर लिसनिंग दैट वा चुका होगा, वा चुका होगा, वा चुकी होगी। सो इफ यू फाइंड लाइक दैट ऑफ सेंटेंस इन हिंदी then without hesitation you can say that this sentence belonging from causative of future perfect tense. So now I am writing, so please you take pen and copy and write down with me how जिस वाक्य के अंत में वा चुका हूंगा, वा चुका हूंगा, वा चुका होगा, वा चुका होगा, वा चुके होंगे, वा चुके होंगे। जिस वाक्य के अंत में वा चुका होगा, वा चुका होगा, वा चुके होंगे, वा चुकी होगी, वा चुकी होगी रहे उसे पॉजिटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। सो दैट आई एम टेकिंग सम हिंदी एग्जांपल। जैसे मैं तुम्हें हल चलवा चुका हूंगा, मैं तुम्हें हल चलवा चुका हूंगा, हम लोग तुम्हें गाना गवा चुके होंगे, गवा चुके होंगे, हम लोग तुम्हें गाना गवा चुके होंगे, तुम मुझे पत्र लिखवा चुका होगा, लिखवा चुका होगा, होगा, वह तुम्हें पेड़ लगवा चुकी होगी, वह तुम्हें पेड़ लगवा चुकी होगी, वे लोग तुम्हें गणित बनवा चुके होंगे, बनवा चुके होंगे, वे लोग तुम्हें गणित बनवा चुके होंगे, राम तुम्हें आम तोड़वा चुका होगा, आम तोड़वा चुका होगा, होगा, सीता तुम्हें किताब खरीदवा चुकी होगी, सीता तुम्हें किताब खरीदवा चुकी होगी। सो दैट whatever I have taken the Hindi example you are looking here, वा चुका होगा, you can look here, वा चुका होगा, वा चुके होंगे, वा चुका होगा, वा चुकी होगी, here वा चुके होंगे, again here वा चुका होगा and वा चुकी होगी। So that you have to remember how जिस वाक्य के अंत में वा चुका होगा, वा चुका होगा, वा चुकी होगी, वा चुके होंगे रहे उसे पॉजिटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें हल चलवा चुका हूंगा, हम लोग तुम्हें गाना गवा चुके होंगे, तुम मुझे पत्र लिखवा चुका होगा, वह तुम्हें पेड़ लगवा चुकी होगी, वे लोग तुम्हें गणित बनवा चुके होंगे, राम तुम्हें आम तोड़वा चुका होगा एंड सीता तुम्हें किताब खरीदवा चुकी होगी। सो दैट whatever I have taken the Hindi example you are looking that वा चुका होगा, वा चुका होगा, वा चुकी होगी। So if you find like that a sentence then without hesitation you can say that this sentence belonging from causative of future perfect tense. I hope you are understanding and you are able to do about the causative of future perfect tense. So let's start rule of making sentence. Rule of making sentence saying that subject plus will have plus made plus object plus given plus main object. So I am writing, so please you write also subject plus will have plus V3 that means made, subject plus will have plus made plus object, and you know that this object will use for the person. After then V1 plus main object.
So finally I have given the rule. I hope you are understanding, because already we have finished that causative of present tense, past tense, and we are in future tense, so that it is easy to do. So according to the rule, let's we try to take some example in Hindi first. After then I will translate. If I say that मैं तुम्हें पत्र लिखवा चुका हूँगा, then what will happen? Please carefully look. I will have made you write a letter. I will have made you write a letter. मैं तुम्हें पत्र लिखवा चुका हूँगा. If I say हम लोग तुम्हें पत्र लिखवा चुके होंगे, then we will have made you write a letter. If I say तू मुझे पत्र लिखवा चुका होगा, you will have made me, I can say you had made me write a letter, because you know that according to the demand of the subject we are using the here object, and already I have told you that this object will use for the person, so that you will have made me write letter. तू मुझे पत्र लिखवा चुका होगा. If I say वह तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा, then he will have made you write a letter. Like that I can say वह तुम्हें पत्र लिखवा चुकी होगी, then she will have made you write a letter. वे लोग तुम्हें पत्र लिखवा चुके होंगे. They will have made you write a letter. If I say राम तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा, then Ram will have made you write a letter. Very simple, so that you have to careful. So let's we discuss in Hindi. So हमारा रूल क्या है? Subject plus will have plus made plus object plus V1 plus main object. So subject रूप में मैंने क्या लिया? पिछला क्लास की भांति I, we, you, he, she, they and Ram. That means any name we can put here. उसके बाद क्या बोलता है रूल? Will have. तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद मैं क्या डाला हूं? Will have. उसके बाद मेड. ये मेड क्या है? पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? V3. तो ये मेक का V3 है. मेड, मेड. सो दैट हियर ऐसे पॉजिटिव वर्ब आई एम यूजिंग हियर मेड. हम क्या यूज कर रहे हैं? मेड यूज कर रहे हैं. उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, और मैं बार बार बोलता हूं कि यह ऑब्जेक्ट ना पर्सन पे यूज होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये सेंटेंस के डिमांड पर निर्भर करता है, बट हमको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं. इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? यू एंड मी, क्योंकि इस सेंटेंस के अनुसार ये फिट बैठ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. उसके बाद V1, तो V1 के रूप में मैंने राइट का प्रयोग किया हूं. उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर किसका रोल अदा कर रहा है? मेन ऑब्जेक्ट का. तो फाइनली हमारा रूल क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट. सो इस तरह से ना हम लोग क्या करेंगे? ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं. वी कैन टेक लोड्स ऑफ एग्जांपल. सो लेट्स वी कम इन हिंदी ट्रांसलेशन एंड आई कैन से दैट आई विल हैव मेड यू राइट लेटर. मैं तुम्हें पत्र लिखवा चुका हूंगा. वी विल हैव मेड यू राइट लेटर. हम लोग तुम्हें पत्र लिखवा चुके होंगे. यू विल हैव मेड मी राइट लेटर. तुम मुझे पत्र लिखवा चुका होगा. ही विल हैव मेड यू राइट लेटर. वह तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा. शी विल हैव मेड यू राइट लेटर. वह तुम्हें पत्र लिखवा चुकी होगी. दे विल हैव मेड यू राइट लेटर. वे लोग तुम्हें पत्र लिखवा चुके होंगे. एंड राम विल हैव मेड यू राइट लेटर. राम तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा. मैं तुम्हें पत्र लिखवा चुका हूंगा. हम लोग तुम्हें पत्र लिखवा चुके होंगे. तुम मुझे पत्र लिखवा चुका होगा. वह तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा. वह तुम्हें पत्र लिखवा चुकी होगी. वे लोग तुम्हें पत्र लिखवा चुके होंगे. राम तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा. सो इफ यू फाइंड आउट ऑफ सेंटेंस, देन यू कैन easily you can understand, but you have to careful about the rule, then easily you can make the sentence of causative of future perfect tense. So I am taking one more example, then you can easily understand. So I am taking the example, मैं तुम्हें साइकिल चलवा चुका हूंगा. देन हाउ टू ट्रांसलेट?
I will have made you drive cycle, we will have made you drive cycle, you will have made me drive cycle, he will have made you drive cycle, she will have made you drive cycle, they will have made you drive cycle, Ram will have made you drive cycle. You can make lots of example. So how to remember the accusative of future perfect tense? So please careful. जिस वाक्य के अंत में वा चुका होगा, वा चुका होगा, वा चुकी होगी, वा चुके होंगे रहे, उसे पॉजिटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवा चुका होगा, हम लोग तुम्हें भात पकवा चुके होंगे, सीता तुम्हें मछली पकड़वा चुकी होगी। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेड प्लस object plus V1 plus main object. For example, I will have made you write later, we will have made you write later, you will have made me write later, he will have made you write later, she will have made you write later, they will have made you write later, Ram will have made you write later. I hope you are able to do, and you have to remember like that, then bit by bit you will improve your grammar section, because you know that Hindi medium students are facing in grammar and word meaning, so that they are unable to make the sentence, and the most problem is that they are unable to open the mouth. That means they are hesitating. That's why they are unable to speak English. So that you have to collect the grammar, collect the meaning, and you have to practice, then you can speak English. I hope you are able to understand. So thank you very much for watching my video. We will meet in next class.